Okay, a big press conference is about to come up. It's the Election Commission of India that will be giving us a roadmap or probably a plan of how the nationwide SIR or the Special Intensive Revision of the electoral rolls will be conducted. Remember, it was already done in Bihar. There was a lot of legal hassle that was associated with it, a lot of political furor as well. And now, probably in a few minutes, the Election Commission of India will be announcing a nationwide SIR. It is expected that in 4 poll-bound states, the first phase will be seen. That is in Tamil Nadu, Kerala, Bengal and Assam. These will be the first states that will see the activity or the exercise of special intensive revision of the electoral rolls. Now, we have already seen Bihar, which is going to be voting soon, that undertook this massive exercise, and after that, there were deletions and additions that were done, and now this very exercise will be conducted in other poll-bound states as well. Chief amongst them, the 4 states of Tamil Nadu, Kerala, Bengal and Assam. This is a phase-wise activity that will be conducted. Now, amidst that, there has been a mega bureaucratic reshuffle in Bengal. Hours before this press conference that is about to happen, at about 4:15 now, there were 10 DMs that were transferred. A big shake-up happened in the bureaucracy of West Bengal. There were some announcements of transfers that were made. And joining us live now is India Today's Rahul Gautam. Rahul, I'm handing it over to you. Well, I have with me Mr. Pramod Tiwari, who is the deputy leader of opposition in Rajya Sabha, and in fact, we all know that how opposition has been a very critical or a very bitter opponent as far as BJP's this move, or as they've been claiming that this is the BJP's move, which is happening at the behest of the BJP by Election Commission to actually compromise the entire election process. And I'll just get a word from Mr. Pramod Tiwari. Mr. Tiwari, how do you view now that the Election Commission is now going to implement SIR in first phase in almost 10 to 15 states? आप लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि इससे जो पूरी प्रक्रिया है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है. देखिए, अगर नीयत साफ होती, नीयत साफ होती, तो ये पार्लियामेंट के चुनाव के पहले क्यों नहीं हुआ? जब पार्लियामेंट में आपने नारा लगाया था, अब की बार 400 पार, तो उस समय आपके दिमाग में यही था भाजपा के कि वो संविधान बदलेंगे. अंबेडकर साहब ने जो अधिकार हर व्यक्ति को एक वोट का दिया है, उसमें से वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, बैकवर्ड, जो वोटर उनका नहीं है, उसे हटा देंगे. नहीं कर पाए. लेकिन तिवारी साहब, जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, फिर वो निकलेंगे किस प्रकार से? क्योंकि एसआईआर का जो प्राइमरी पर्पस है, जैसे इलेक्शन कमीशन कहता है कि उन तमाम जो लोग अब नहीं हैं, चले गए हैं, जिंदा नहीं है, उनको हटाना ही तो है. वही तो मैं कह रहा हूं कि ये तो एक रेगुलर प्रोसेस जो होता रहा है, जो होता रहा है. यहाँ जिस तरह से इन्होंने बिहार में करने की कोशिश की थी या कुछ किया भी है, वो तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट. उसमें जो वोटर उनका नहीं, उस वोटर को बाहर करने की, मैं तो कहता हूँ बड़ा चिल्लाते हैं घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया. प्रधानमंत्री भी घुसपैठिया बोलते हैं, गृह मंत्री भी घुसपैठिया बोलते. बंगाल चुनाव में बोले थे, क्या घुसपैठिया निकाला? झारखंड में बोले थे, क्या घुसपैठिया निकाला? और बिहार में कहा है, क्या घुसपैठिया हैं उसमें? बताएंगे कुछ? भारत सरकार उनकी, बिहार सरकार उनकी, और सिर्फ चुनाव में घुसपैठिया होता है. चुनाव बाद घुसपैठिया खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं ये सब. देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का मतदाता का प्रतिशत गिरता चला जा रहा है, मतों का प्रतिशत. अब उनको चिंता है
कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में हुआ, अगर 2-3 राज्य एक साथ नहीं खड़े, कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर धांधली कर रहे हैं इसके तो। साफ साफ कह रहा हूं कि बीजेपी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन कर रहा है ऐसा, ये ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि भाजपा ने कहा था अब की 400 पार, तो संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ी देश की जनता ने, और उनको 400 तो छोड़िए बहुमत नहीं पार होने दिया। तो अब दूसरी तरीके से अब घुसपैठिया जब बोलते हैं ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, उनके मुंह से निकलता है, तो मैं कहना चाहता हूं ये घुसपैठिया अगर आए सीमा पार करके तो कौन जिम्मेदार? आप डेप्यूटी लीडर भी हैं राज्यसभा के अंदर, क्या ये मान के चलें कि विपक्ष इसको उठाएगा आने वाले सत्र के अंदर, क्योंकि आप पिछली बार भी ये मांग कर रहे थे कि इस पर चर्चा हो। पिछली बार सत्र चला एक दिन, क्या तैयार हुए ये? क्या हिम्मत पड़ी इनकी डिस्कशन करने की? और चुनाव सुधारों पे पहले 2-3 बार डिस्कशन हो चुका है, तो चुनाव सुधार पर डिस्कशन करने में क्या दिक्कत थी? शुरुआती दौर में इन्होंने कहा देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, बाद में कहेंगे। दूसरे हफ्ते कहा कि देखिए ये अभी नहीं हो सकता, आप हमारा कुछ बिल पास करा दीजिए। तो बेईमानी शुरुआत से कर रही है, लेकिन याद रखिए पूरा विपक्ष पूरी ताकत लगा देगा, देश की जनता जागरूक है, ताकत लगा देगी, लेकिन हम अल्पसंख्यकों के, शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के, कमजोर लोगों के वोट कटने नहीं देंगे। ये हम हर अंतिम लड़ाई अंतिम समय तक लड़ेंगे। Right. So you just heard the opposition MP clearly stating that he does not and his party does not trust the process of Election Commission of doing SIR.